Hello friends, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, Semester 2, Chapter 3, Courts and Their Importance, Part 2. So in last chapter, we discussed certain points about the court. In that we discuss about the High Court of Gujarat, uh, then after we talk, before that we talk about the goddess of justice, different symbol, story of washerman. We talk about that. So that was the example of monarchy. Now here we are going to talk about the civil case example. This is the case of Hansaben, who lived in a village, and the head of that village tried to capture the land of Hansaben. And what kind of verdict given by the court, taluka court, that is mentioned here. So this is the example of civil court. By story, it was given here. It is given here. Now, what is the important thing? That those who still not watch the part 1 video, first they watch part 1 video, then after you can understand this part 2. And for instant, like the channel, subscribe the channel and press the bell icon, because if you press the bell icon, then whatever the videos will be uploaded, that you can get the notification of that video. So let's see what is the case. There was once a landlord in a small town whom everyone was afraid of. He owned a majority of land area in the town. There was an old lady, Hansabin, whose farm was near his land. The landlord gradually started capturing the land nearby. Slowly and steadily, the landlord encroached upon half of Hansabin's territory. Her farm, territory means her farm. तो यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड था एक टाउन में, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन थी. वहाँ पे ही टाउन में एक लेडी थी जिनका नाम था हंसाबेन. उसका फार्म ये लैंडलॉर्ड के फार्म से नियर था. ये लैंडलॉर्ड क्या किया कि स्लोली स्लोली करके उनकी लैंड को कैप्चर करना चालू कर दिया. एंड डिड नॉट गिव हर लैंड और मनी इन रिटर्न. उसने उनकी लैंड ले ली, पर उनके बदले में हंसाबेन को ना ही कोई और दूसरी लैंड दी, ना ही कोई पैसे दिए. Thus, in order to get back her land, हंसाबेन filed a case in the तालुका कोर्ट. इसके लिए हंसाबेन पहुंच गए तालुका कोर्ट में. Both the landlord as well as हंसाबेन presented their argument in the court. The judge heard their arguments and gave the verdict in favor of हंसाबेन. क्योंकि हंसाबेन के पास सब ज़मीन के पेपर थे, तो यहाँ से क्लियरली प्रूव हो जाता है कि वो जो लैंड थी वो किसकी थी, हंसाबेन की थी. तो ऐसे जो केस है इसको सिविल केस बोला जाता है. प्रॉपर्टी का केस है, ये सब केस. ओनली सिविल केसेस आर हियर्ड इन द तालुका कोर्ट. तालुका कोर्ट में कौन से केसेस सुने जाते हैं? सिविल केसेस. हाउस, लैंड और प्रॉपर्टी केसेस आर कॉल्ड एज सिविल केसेस. इफ पीपल डू नॉट गेट जस्टिस इन तालुका कोर्ट, दे कैन अपील इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो हमारा जो स्ट्रक्चर इस तरह का है कि लोअर कोर्ट में अगर आपको जस्टिस नहीं मिलता है तो आप उससे ऊपर वाली कोर्ट में जा सकते हो. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं मिला तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते हो. जिसके बारे में आप इस स्टैंडर्ड में जब आओगे तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ोगे. अब यहाँ पे व्हाट इज़ अ सिविल केस? A non-criminal lawsuit usually involving private property rights. For example, lawsuit involving breaches of contract, probate, divorce, negligence and copyright violations are just a few of the many hundreds of varieties of civil lawsuit. तो सिविल केसेस के बहुत सारे केसेस है जो सिविल केसेस में आते हैं, पर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये सब केसेस दिखाए गए हैं. अब देखते हैं और गुजरात हाई कोर्ट के बारे में जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था, तो वो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये है
बिल्डिंग गुजरात हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। ये देखिए कितना बढ़िया बिल्डिंग है ये। यहाँ पे रीड एंड अंडरस्टैंड है। द कोर्ट एट द लोअर लेवल इन तालुका कोर्ट। फिर सच कोर्ट्स आर कॉल्ड ट्रायल कोर्ट्स, इसको ट्रायल कोर्ट्स भी बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अबव तालुका कोर्ट, तालुका कोर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ द हाई कोर्ट। जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं स्टेट में, उसके जो जो हेड कोर्ट बोलते हैं वो है ये हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अंदर से कैसे दिखती है, तो इस तरह से होती है सिटिंग अरेंजमेंट। अब गुजरात हाई कोर्ट के बारे में कुछ जानते हैं। द हाई कोर्ट हियर्स फर्स्ट अपील फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। On the criminal side, the High Court has to confirm all sentences of death passed by courts of sessions and hear references in this behalf. High Court hears criminal appeals for convictions awarded by sessions judge. Sessions judge यानी district court के जो judge होते हैं, और additional sessions judges of from the judgment of any other court where a sentence of more than 7 years imprisonment has been passed. तो जहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया गया है यानी फांसी की सज़ा दी गई है और 7 इयर्स के ऊपर की सज़ा है, तो ये सब केसेस की अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं। यहाँ हाई कोर्ट के हमारे कुछ जजेस हैं। मिस्टर शाह पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं आर सुभाष रेड्डी। एमपी हाई कोर्ट के जज है हेमंत गुप्ता। त्रिपुरा हाई कोर्ट के जज है अजय रस्तोगी। तो ये सारे जजेस हैं अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट के। अब यहाँ पे गब्बर का एक केस है, ये क्रिमिनल केस है। देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड रानपुर। द हेड ऑफ दैट विलेज वॉज लालजी मुखी। It was winter. One day, while returning home from the farm late in the evening, a car suddenly stopped near him. A few men got down from the car, attacked him, and left him badly injured. The person who attacked him was known Rufain Gabbar. Mukhi filed a case against Gabbar and got him arrested. Gabbar was asked to remain present in the court. After the argument from both the lawyer, the judgment was passed in Gabbar's favor. Thus Gabbar was set free and Mukhi did not get justice. Gabbar kept threatening Mukhi repeatedly and even threatened to kill him. Mukhi was fed up of this and thus decided to appeal in the High Court. The High Court heard the arguments from both the sides. Judgment of the High Court was different from that of the District Court. Gabbar was convinced and Mukhi finally got justice. Hence, if a person doesn't get justice from the district court, he can appeal in the high court. तो ये केस कैसा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुखी ने कंप्लेन की, पर वहाँ पर ये जो क्रिमिनल गब्बर था उसको ड्यू टू द एविडेंस, लैक ऑफ द एविडेंस, उसको फ्री कर दिया गया। मुखी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने सब बातें फिर से देखी, सब एविडेंस चेक किए और उनको लगा कि ये जो गब्बर है वो क्रिमिनल है, उसने मुखी को मारा है, इसलिए उसको पनिशमेंट दे दी गई। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो भी डिसीजन आया वो सेटिस्फाई नहीं होते हो आप, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। यहाँ पे कुछ थिंग्स टू नो है, ये सब आपको नोटबुक में लिखने हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ क्रिमिनल कोर्ट. द policemen arrest criminals on the basis of complaints filed against them. Criminal gets punishment like penalty, life imprisonment of death, sentence on the basis of the type of crime committed by him or her. Theft, robbery, duel, murder, physical harm, or any kind of fights come under criminal cases. When the police get know about crime for the first time, an FIR, first information report, is registered. तो क्रिमिनल केसेस में पुलिस जो होती है वो इस तरह से केस को रजिस्टर करती है, जिसको बोलते हैं FIR। अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो आपने जो FIR रजिस्टर कराई है उसकी भी कॉपी आप देख सकते हो।
एक वर्ड और भी है इस लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में, समन्स। तो वो क्या है? तो समन इज अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू अपीयर इन कोर्ट. It includes the name of the type of court issuing the summons, the name of the party receiving the summons, the number assigned to the cases by the court, the names of the plaintiff, person filing suit, and defendant, how the person who received the summons must respond, when the summons must be responded to, what the case is about. तो समन जो होता है वो कोर्ट की एक नोटिस होती है जिसको समन बोला जाता है, जिसके अंदर इतनी बातें लिखी होती है। अब यहाँ पे एक जुगनू का केस है, तो वो देख लेते हैं, जिसकी मॉक ट्रायल होती है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा मॉक ट्रायल, वो हमें देखना है। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज नेम रतनपुर वेयर जमशेदजी अ मैजिशियन लिव्ड. One day a thief robbed his house, but he did not know what to do, and so he came out of the house for help, shouting for help. Everyone came out of their houses, but the thief managed to escape. What, according to you, should Jamshedji do now? So obviously, Jamshedji can file FIR to the nearest police station. ठीक है। अब जुगनू का केस है, ये भी क्रिमिनल है। There was an abominable and cruel man named Jugnu. बहुत ही डेंजर जो होता है वो। People were afraid of him as he could rob and kill anybody. One day a social worker visited that village. Since Jugnu's deeds were of a criminal offense, she filed a case against him in the district criminal court in order to save people from his terror. क्योंकि जो लोग गांव में रह रहे थे वो सब ये जुगनू से डरते थे। कोई सोशल वर्कर वहाँ पे आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने सबको बचाने के लिए जुगनू के अगेंस्ट क्रिमिनल कोर्ट में केस फाइल किया। ही वॉज ट्राइड इन कोर्ट बट द लेडी लॉस्ट द केस एज नो वन डेयर टू स्पीक अगेंस्ट जुगनू। पर ये जो लेडी थी सोशल वर्कर जिसने केस फाइल किया, वो केस हार गई, क्योंकि जुगनू का टेरर इतना था कि उसके अगेंस्ट किसी ने भी कोई भी एविडेंस नहीं दिया। However, if people had stood witness against Jugnu without fear, what verdict would have been passed? अगर जुगनू के खिलाफ कोई एविडेंस मिल जाता तो उसका रिजल्ट क्या होता? तो हो सकता है जुगनू को कोर्ट जेल में भेज देती। अब मॉक ट्रायल क्या है? तो मॉक ट्रायल इज एन एक्ट और imitation trial. It is similar to a moot court, but mock trials simulate lower court's trial, while moot court simulate appellate court hearings. यानी यहाँ क्रिमिनल केसेस की हियरिंग होती है मूट कोर्ट में, और मॉक ट्रायल में जो सिविल केसेस होते हैं उसकी हियरिंग होती है। Attorneys preparing for a real trial might use a mock trial consisting of voluntaries as role plays to test theories or experiment with each other. तो अटर्नी कौन होता है? जो एक्चुअल जो पर्सन है उसके लिए जो भी पेपर्स प्रिपेयर करता है या जो भी आंसर देने के लिए रेडी होता है उसको बोलते हैं अटर्नी। यहाँ पे भी एक है मूट कोर्ट के बारे में। अ मूट कोर्ट इज अ सिमुलेशन ऑफ अ रियल कोर्ट टू गिव स्टूडेंट्स एन इंसाइट ऑन डीलिंग विद अ लीगल प्रॉब्लम एंड हाउ टू प्रेजेंट अ केस इन फ्रंट ऑफ जज। तो एक तरह की ट्रेनिंग होती है जिसको मूट कोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे है क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो a person to be appointed as a judge of the Supreme Court must have the following qualification. ये सुप्रीम कोर्ट का है, वैसे ही हाई कोर्ट का है। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। शुड हैव वर्क एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अब जब हाई कोर्ट के जज होते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 5 years, ये टर्म जो है वो सेम रहेगी। और शुड हैव बीन फॉर एटलीस्ट 10 years एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के बदले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील जो होते हैं कम से कम 10 साल के लिए, और 2 or more सब ऑर्डिनेंट कोर्ट्स, तो वो हाई कोर्ट के जज बनने के लायक होता है। शुड बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड
ज्यूरिस्ट। तो यहाँ पे गवर्नर होते हैं और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होती है, जिनका नाम किसी को पता नहीं होता है, उनके ओपिनियन लिए जाते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, वो आपको लिखना है। व्हाट इज यूजुअली प्रेजेंट इन अ कोर्ट, व्हाट आर्ग्यूज इन द कोर्ट, विच टाइप ऑफ केसेस आर हियर्ड इन द कोर्ट, व्हाई डज द कोर्ट गिव verdicts, what will happen if the court does not pass any verdict, what will happen if the judgment is not accepted, what will happen if people do not have money to pay to the court। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। अब यहाँ पे है वो हमें वर्ड के मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। तो वो मैं आपके सामने ही यहाँ पे लिखूँगा। तो सबसे पहला आता है पिटिशनर। तो पिटिशनर हम किसको बोलेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अ पर्सन हु फाइल्स कंप्लेंट्स और केसेस, अ पर्सन हु फाइल्स कंप्लेंट और केसेस, तो इसको बोला जाता है पिटिशनर। तो ये एक आपका हो गया पिटिशनर वाला। चलिए नेक्स्ट है जज। जज हम किसको बोलेंगे, तो द पर्सन हु इम्पार्ट्स द पर्सन हु imparts justice after hearing the argument of lawyer of the argument of the lawyer of the petitioner and accused। petitioner and accused। तो इसको हम बोलेंगे जज। जो पिटिशनर और एक्यूज जो होते हैं, उनके लॉयरों की दोनों की बात सुन के जो वर्डिक्ट देते हैं, उनको बोलेंगे जज। लॉयर किसको बोलेंगे, एन इंडिविजुअल हु हैज सिक्योर्ड सेम फ्रॉम द बार काउंसिल and has knowledge of law to practice law। secure license, an individual who has secure license from the bar
council and has knowledge of to practice the law। तो लॉयर जो होता है उसको लाइसेंस मिला होता है, उसके पास नॉलेज होता है किस तरह से वर्क करना है। सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस तो मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी जो है वो आपको खुद ढूंढ के उसको लिखना है, बाकी का टेबल आपको कंप्लीट करना है। और लास्ट में जहाँ पे ये एक्सरसाइज है ये आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बारे में और आगे हम जानेंगे, जैसे आप स्टैंडर्ड आपका बढ़ता जाएगा और बहुत सारी डिटेल्स आएगी, बहुत लंबी प्रोसीजर है। तो जब आप 8 स्टैंडर्ड में आओगे आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानोगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो चैप्टर 4 का होगा, हिस्ट्री सेक्शन से मुग़ल एम्पायर के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि वो टाइम पे हम बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर ये सब के बारे में जानेंगे। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो आई होप दैट यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया है दैट यू अंडरस्टैंड वेल। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन। और पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना, रिवीजन करते रहना, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स, wear a mask and maintain a social distance, and take care of yourself and your family too. Thank you very much. God bless you.